وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اسلامی بھائی مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کو ایسا ذہن نہیں دیتے، نہ ہی اپنی بہنوں کو، نہ والدہ کو. اگر گھر کی اسلامی بہنیں دینی کام کرنے میں اپنا وقت گزارتی ہیں تو اسلامی بہنوں کے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا، بلکہ اسلامی بھائی خود ماحول سے وابستہ ہونے کے باوجود اگر ان کے گھر میں اسلامی بہنوں کے ساتھ تعاون نہیں فرماتے تو جن کے گھر میں دینی ماحول نہیں ان کے ساتھ تو مزید آزمائش ہو سکتی ہے. یعنی خود دینی ماحول میں ہوتے ہیں مگر گھر کی اسلامی بہنوں کا ذہن نہیں بناتی اور وہ کام کرتی ہیں تو انہیں کرنے نہیں دیتے. ایسے بھی ہوتے ہیں. یہ سوال ہے. میرے خیال میں یہ وہ ہوتے ہوں گے کہ جو لگتے ہوں گے کہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں، اور ایکچولی یہ ہوتے نہیں ہوں گے. اگر واقعی بالکل یعنی کہ 100% کو دعوت اسلامی کے ماحول میں ہو اور کام کرتا ہو، وہ اپنی بیوی کو یار روکے گا کیوں کام سے؟ امپاسبل ہے. کہ بھلے لگتا ہوگا وہی سمجھتی ہوگی کہ دعوت اسلامی کی فلاں ذمہ داری ہے. کئی ذمہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے غیر ذمہ دار اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، اور یہ ذمہ دار پھر ایسے بن گئے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. باپ کے باپ ہوتے ہیں وہ. ایسا بھی ہوتا ہے. تو اب اس طرح بیچاری کا، بیوی کا نصیب، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں اگر جو صحیح دعوت اسلامی والا ہوگا، نہ بچوں کی امی کو روکے گا نہ بچوں کو روکے گا کبھی، بلکہ یہ چاہے گا کہ میرے بال بچے سب دین کا کام کرے. انڈرسٹوڈ ہے، مطلب کہ دنیا میں کام کرے اور اپنے بچوں کو مطلب کام نہ کرنے دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں نے بہت دیکھا اس کو کہ واقعی یعنی کہ بعض اوقات یہ امامہ باندھ لے گا، داڑھی رکھ لے گا اور لگے گا کہ دعوت اسلامی کی باتیں ایسی کرے گا کہ ولایت تو اس کی نظر سے مل جائے گی، اور ہوگا مطلب پکا مطلب چھانٹا ہوا بد اخلاق. تو یہ ہوتا ہے. تو وہ بیچاری ایسوں کو سمجھتی ہوگی کہ دعوت اسلامی والا ہے. دعوت اسلامی والا نہیں ہے. یہ ناصور ہے دعوت اسلامی کا. وہ دعوت اسلامی کو بدنام کر رہا ہے. گیٹ اپ دعوت اسلامی کا، اس کا اندر مسئلہ کچھ اور ہے. تو اللہ ہمیں ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح نصیب فرمائے. لیکن ہم کسی فرد کو دیکھ کر اس کو یہ نہیں کہیں گا کہ تیرا خالی گیٹ اپ ہے اور اندر میں تو یوں ہے تو یوں. پھر یہ بھی جھگڑے ہوں گے، پھر بدگمانیاں، تہمتیں، وہ پھر اپنی جگہ پر ہے. میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے. ماریں گے بیوی کو، جھگڑے کریں گے، طلاق دیں گے، یہ کریں گے. یہ ہوتا گیٹ اپ دعوت اسلامی کا. تو اس لیے یہ ہمارے کھاتے میں نہ ڈالا جائے. اب یہ تو داڑھی تو رکھ رہے ہیں لوگ، اتنی رکھ رہے ہیں جیسے فل ماڈرن ہوتے ہیں. داڑھی پوری رکھی ہوتی ہے. آپ نے بھی دیکھا، آپ کے یہاں تو بہت ہوتا ہے، اور آپ میں سے کئی ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو اپنے وطن میں جا کر آپ کا لباس دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ وہی ہے جو امامہ باندھ کر فیضان مدینہ میں سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا. یہ ہوتا ہے مطلب. تو اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم کرے. ظاہر باطن ہمارا ایک ہی رہے. ہم مبلغ ہیں تو پھر ہر جگہ مبلغ رہے، گھر میں بھی، پڑوس میں بھی، دفتر میں، آفس میں، دنیا میں جہاں بھی جائیں ہمارا مطلب دعوت اسلامی. ہم دعوت اسلامی والے. ہمارا انداز پورا، ہماری ٹاکنگ جو بھی ہے وہ سب دعوت اسلامی کی ہو. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. میں نے دیکھے نا، کبھی میں مطلب ایک بار کسی کے گھر گیا تھا، باہر ملک کی بات کرتا ہوں، تو وہاں ایک عیسائی بھائی، بڑے داڑھی امامہ ماشاءاللہ، بڑے نکھرے تھے. اب وہ بیچاروں کا یہ اچانک مطلب یہ اندر گئے اور ایسا عجیب و غریب لباس پہن کر. میں دیکھ گیا کہ یار یہ وہی ہے. تو خیر وہ میں سمجھ گیا کہ بیچارہ ڈیوٹی پہ جا رہا ہے. تو وہاں ڈیوٹیاں ایسی ہیں، نوکریاں ایسی ہیں. تو وہ سفر سارے راہ دنیا میں، سارے مائنس.
अच्छे खासे सफर राह दुनिया में हो रहे हैं। अब इनको मैं सर अब मैं क्या कहूं, मैं कुछ भी नहीं बोला उसको, एक बात बोलता हूं मैं कि ये हो रहा है सब। तो ये अब इसको बात होगा, मजबूरियां भी है, ये भी है, ये हमारे यहाँ भी ऐसा मजबूरियां हैं कि वो, और इस्लामी मुल्कों में भी ऐसा होता है। एक को भी पिछले दिनों मैंने किसी मुल्क में दाढ़ी के बारे में कुछ दरखास्त की, छोटी थी, अब बढ़ा लो, अब मोहब्बत उसकी देखी, उसका अंदाज देखा, और तो उन्होंने मतलब मुझे बताया कि मैं 4 बार दाढ़ी रख चुका हूं इतनी बड़ी, मैं क्या करूं, जहां मैं नौकरी वो मुझे रखने ही नहीं देते। आपको ताज्जुब होगा, फुल इस्लामी मुल्क की बात करता हूं, इस्लामी मालिक में अजीबो गरीब अंदाज है, बास जगह पर नहीं रखने देते। तो बोला अब मैंने उस नौकरी से जान छुड़ा ली है, तो मैंने अब दाढ़ी कटवाने से जान छुड़ा लो, आ जाओ लाइन पे लगे, अब बढ़ा तो अब मैं बढ़ा रहा हूँ, ये भी काम है, मैं बढ़ा रहा हूँ, तो जान छुड़ा ली है मैंने। और कोई अपनी लाइन इन्होंने सेट कर ली है रोजगार की। ये हो रहा है, मतलब आदमी क्या करे यार, बाजों का। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि दाढ़ी मुंडा दे, दाढ़ी घटा दे, ये नहीं, ये हमारे यहाँ हनफियों में ये वाजिब है, थोड़ी से एक मुट्ठी नीचे रखना, ये नहीं नौकरी के लिए छोटी कर दे, ये हमारे उलमा इजाजत नहीं देते। अल्लाह रोजी का रज़ाक है, रोजी देने वाला है, कोई भूखा नहीं रह जाता, अल्लाह सबको खिलाता है पिलाता है। बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि अल्लाह पाक भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं है, कि रात को कुछ ना कुछ तो पेट भरने को मिल जाएगा, दिन को जब उठेगा तो रात भर खाया नहीं था, भूखा उठा। ये मुहावरा है कि अल्लाह पाक सबको रिस्क देता है। कीड़ी को कन, कन माने छोटा सा सर्रा, कीड़ी चोटी, कीड़ी को कन और हाथी को मन अता फरमाता है। कीड़ी इतने से आधे चावल में भी इसका पेट भर जाएगा, बच जाएगा, और हाथी मन खा लेगा, इतना सारा खा लेगा। तो दोनों को देता कौन है? रब ही तो दे रहा है ना। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं मोहम्मद ज़हीर अतारी हूँ और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। पापा की जानिब में मेरा एक सवाल था, बैरून मुल्क में बच्चे इस्लाम छोड़ के जा रहे हैं या तो इस्लाम से काफ़ी दूर हो रहे हैं, और ये बहुत बड़ा इशू हो रहा है पापा। तो आपसे ये एडवाइस लेनी थी कि हम ऐसे क्या कर सकते हैं कि हम उन बच्चों को बचा लें। हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पापा बच्चे जा रहे हैं। अल्लाह पाक आप सबकी हिफाजत फरमाए, ईमान की हिफाजत करे। काफी साल पुरानी बात है कि वजीर आए थे और कुछ ऐसी बात निकली थी गुनाहों से बचने की, और इस फील्ड में बचना मुश्किल होता ना, तो खैर तो मैंने कहा आप तो वो बात करेंगे गटर के पानी में डुबकियां लगाते रहो और कपड़े पर कोई दाग धब्बा ना हो, तो इसका हल क्या? जवाब मिल गया। हर एक को अपनी आखिरत को सोचना चाहिए और अपनी औलाद की बेहतर से बेहतरीन तरबियत, खुद अपनी बचत ये कैसे हो, ये खुद अपने को सोचना और फैसला करना होता है। और वजह सब समझते हैं, आप भी समझते होंगे कि वजह क्या है इसकी। जब वजह पता है तो मैंने वही बात की ना, आग में हाथ डालकर मेरा हाथ ना जले, अब इसका मेरे पास कोई नुस्खा फार्मूला है नहीं, तो जलेगा ये हाथ। तो इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, धैर्यत पनप रही है। अल्लाह पाक ईमान सलामत रखे हमारा, हमारे बाल बच्चों का, सबका। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस्लामी बहनों की तरफ से एक सवाल है, एक हदीस पाक उन्होंने भेजी है कि खातून जब घर में रहती है, हदीस के अल्फाज ये हैं, दावत इस्लामी की एक पोस्ट ही भेजी है उन्होंने कि औरत अल्लाह पाक के ज़्यादा करीब उस वक्त होती है जब वो अपने घर में होती है। अब इस हदीस को रेफरेंस बनाकर महरम जो है हमें मदनी दौरे से या इज्तिमा से या किसी गैदरिंग में शिरकत से रोकते हैं, तो फिर उनको क्या जवाब दिया जाए? भाई इतना माहिर इल्मी दलाइल रखता हो शौहर, वो अलग बात है। तो ये हज का क्या करेगा? घर में बिठा के रखेगा? औरत पर हज फर्ज हो गया है, हज नहीं करने देगा। तो पहले तो औरतें मस्जिदों में भी जाती थी, अब भी आपके यहाँ तो जाती हैं, नमाजें पढ़ती हैं। बाहर मुल्कों में औरत के लिए अलग पोर्शन होता है,
नमाज के लिए। तो बहरहाल ये कि अगर दीन का काम कोई औरत शरीयत के ऐन मुताबिक पर्दों की और रियायत के साथ करती है तो उसको रोकना के लिए इस हदीस पाक का इस्तेमाल करना, ये मतलब हदीस की शरह क्या है कि औरत क्या मुतलकन बाहर ना निकले। औरत की निकलने के तो बिल्कुल यानी कि असबाब उलमा ने लिखे हैं कि इस सबब से निकल सकती है, इस वजह से निकल सकती है, इस वजह से निकल सकती है। इसलिए मतलब अब हदीस पाक को अपने तौर पर ये इस्तेमाल कर लेना कि हदीस पाक ये है और तुम ये करो, ये ना किया करें, उलमा से मशवरा कर लिया करें। कि शुरुआत जो होती हैं बाज़ औक़ात ज़ाहिरी अल्फाज हमें लगता है कि यूं है, लेकिन शरह देखते हैं ना फिर वुसअत मिलती है जहन को, यार इसका मतलब तो ये है। हमारा इल्म कितना, और वैसे भी अपनी अटकल से अपनी आइडिया से आयत की तफसीर हदीस की शरह ये हराम है। यहाँ तक अगर वो दुरुस्त हो वो शरह जो इसने की, लेकिन वो अहल नहीं था, इसका मतलब है कि इसको इतना इल्म नहीं था और फिर भी इसने की, तो ये गुनाहगार होगा, चाहे वो दुरुस्त भी की तब भी गुनाहगार है। कि कुरान और हदीस के मफाहिम बयान करना, तर्जमे बयान करना, शुरुआत तफसीरात, ये उलमा का काम है, हर आलिम भी नहीं कर सकता। आलिम इसका माहिर फन होता है, हदीस का इल्म जो रखता है वो करेगा, तफसीर का जो इल्म रखता है वो तफसीर करेगा, हर आलिम नहीं कर सकता। तो अब ये हम जैसा अनपढ़ आदमी बोलेगा इस हदीस का मतलब ये, इस आयत का मतलब ये, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। हमारा काम है सिर्फ उलमा जो फरमाए, जो इन्होंने लिखा किताबों में, बस वो आगे बढ़ाए, अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं बढ़ाना, क्योंकि चुनाचे नहीं करना, वरना फिर यह कि सवाब के बदले गुनाह की सूरतें बन सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद इब्राहिम इटली से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। जामिअतुल मदीना इटली के दर्जे सानिया का तालिब इल्म। आपकी बारगाह में सवाल ये था कि हम अपने मुताले को मजबूत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब उस्ताद साहब या कोई और बंदा हमारी तरबियत करता है, तरगीब दिलाते हैं, तो वक्ती तौर पर ज़हन बन जाता है और पक्की नीयत होती है कि आइंदा से हम मुताला करेंगे, ये 20 रोज़ाना के 20-30 सफ़हात पढ़ेंगे। लेकिन जब रात को बैठते हैं तो वही कैफियत पुरानी होती है, हमारा दिल नहीं करता। तो इसके बारे में इशारा फरमा दें। सोबतें, माहौल, अगर मुताला करने वालों की सोबत होगी ना तो इंशाअल्लाह मुताले का ज़हन मज़ीद मजबूत होगा। और ये दिल ना लगना और ये इसकी सब वजूहात हैं। हमारी रूहानियत जो ना ये कमज़ोर है, हमारे रिज़्क़ के मसाइल हैं, हमारी बातों के मसाइल हैं, माहौल के फ़ज़ाओं के मसाइल हैं। अब जैसे गीबत और झूठ है ना, इनकी बदबू निकलती है, ठीक है ना, ये हदीसों में इनकी बदबू निकलती है। हदीस पाक में ना झूठ की बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर हट जाता है। तो ये इनकी बदबू निकलती है और किसी दौर में आती भी थी, किसी दौर में पता चल जाता था कि कोई झूठ बोल रहा है, कोई गिबत कर रहा है। अब पता नहीं चलता क्योंकि अब हमारी नाक अट गई। जैसे कि जो चमड़ा रंगता है, स्किन रंगता है जानवरों की, तो हम उधर निकलेंगे नाक बंद करके निकले, यार बहुत बदबू आ रही है। ये जो है जो काम कर रहा है इसको बदबू आती ही नहीं है, इसी को बोलते हैं नाक अट जाती है। इसी तरह इत्र वालों को वो खुशबू नहीं आएगी, जो खुशबू हम इत्र की गली से निकलेंगे मजा आ जाएगा, उसको पता ही नहीं चलता कि वो सूंघ सूंघ कर इत्र खुशबू अब उसको नहीं आएगी। इत्र सूंघने के बाद माहिरीन देखे मैंने, वो कुदरती इनको ये होता है कि वो इत्र सूंघ कर वो पता कर लेते कि ये खुशबू कौन सी है, लेकिन ये बहुत कम लोग होते हैं। ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ। इसी तरह मतलब ये कि ये हमारे यहाँ माहौलियात की वजह से, हमारी रोजियों की वजह से, हमारी ग़िज़ाओं की वजह से, हमारी सोबतों की वजह से ये इस तरह का वो है कि रूहानियत जो है ना ये हमारी बहुत डिस्टर्ब है। हमको सबको नहीं, बस जनरली कब्ज लगा हुआ है। एक कब्ज तो होता है पेट का, ये कब्ज होता है ये समझो कि शरई मामलात में, रूहानी मामलात में, तो ये रूहानी कब्ज तकरीबन लोगों को लगा होता है। इबादत में दिल ना लगना, नेकी में दिल ना लगना,
तो दीनी बात में सुनकर मजा ना आना, ये कब्ज की वजह से होता है। अब इस कब्ज का इलाज करे किसके बाद? जो हम जिसके बाद इलाज करने जाते हैं बेचारा वो खुद कब्ज का मरीज होता है बाज़ औक़ात। तो इसलिए मतलब कोशिशें करते रहे, आप नेक अमाल का रिसाला पकड़ लें, बस इस पर अमल करते रहें, नेकी की दावत देते रहें, दीन का काम नहीं दिल लगता तब भी करें। मरीज को ग़िज़ा अच्छी नहीं लगती लेकिन उसको मजबूर किया जाता है खाओ ताकि ताकत मिले, दवा उसको नहीं भाती लेकिन उसको मजबूर किया जाए दवा पियो ताकि तुम्हारा इलाज हो जाए। तो इसी तरह हम मतलब दवान ग़िज़ान जो भी समझो, दिल लगे ना लगे, हम अपना काम करते रहें, इंशाअल्लाह दिल भी लग जाएगा। बाज़ बुजुर्गों के हैं इस तरह के अक़वाल कि हमारा तिलावत में दिल नहीं लगता था या नमाज में दिल नहीं लगता था, 20 साल तक हमने इस पर मेहनत की है, फिर आखिर हमने इनसे नफा उठाया तो दिल लग गया। मतलब तो कोशिश, अस्साइयो मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश मेरी तरफ से और तकमील कंप्लीट करना ये अल्लाह की तरफ से। तो मुताला करते रहें, दिल लगाते रहें, मुताले के फ़ज़ाइल पढ़ें तो इंशाअल्लाह इस तरह मुताला करने वालों के वाक़यात पढ़ें वो किस तरह मुताले करते थे, कमाल के मुताले करते थे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सैयदी, मेरा नाम शमसुद्दीन अत्तारी, मैं अल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र से आया हूँ, असलन बांग्लादेशी। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जब इंसान किसी को नुकसान पहुँचाता है तो अक्सर ऐसा होता है कि किसी अमवाल के वजह से नहीं होते बल्कि हसद के वजह से होता है। तो हसद के वजह से दूसरे भाई को नुकसान पहुंचाता है, और ऐसा भी होता है कि बार बार ये जो बातिनी अमराज ज़हूर होते हैं, फिर उसका आदत भी ऐसा ही बन जाता है। और ऐसा भी है कि हम देखा बहुत सारे को कि खून के साथ जो ये आदत जोड़ जाते हैं, तो हम इनके साथ मुआमलात कैसे करें? और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जिस पर जुल्म होता है, यानी जिसको नुकसान पहुंचाता है, वो नुकसान जो पहुंचाते हैं उसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम इस हाल में क्या करें जिस पर जुल्म हो? मिन फضلक आप ये सवाल का जवाब दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। अब ये कि दुनिया में ये हो तो रहा है, हसद की वजह से बड़े बड़े नुकसानात लोग एक दूसरे को पहुंचा रहे होते हैं, और ये काम बदकिस्मती से दीनी कामों में भी ऐसा होता है। मिसाल के तौर पर आप बयान करते हैं, मैं भी बयान करता हूँ, ठीक है ना? तो अब ये कि ये बयान करता है तो उसको लोग ज़्यादा सुनते हैं, मैं बयान करता हूँ तो मुझे लोग कम सुनते हैं। ये अच्छा बयान करता है मुझसे, तो शैतान वो उसमें हसद डाले, यार ये छा रहा है और मेरे को यार कोई भाव पूछता नहीं है, तो इसकी किसी तरह मैंने काट करनी है, यार इसको मत दिया करो। आपको पता नहीं इसका कैरेक्टर, मुझे पता है, मैं जानता हूँ इसको। ये घर में इसका माहौल यूं है, घर में यूं करता है, बाजार में जाता है तो यूं करता है, और हमारे सामने आता है तो बिल्कुल बिछा बिछा जाता है, बहुत अखलाक है। आप जाके पड़ोसियों से पूछ लो किरदार क्या है। तो इस तरह उसको डिग्रेड करने के लिए वो कोशिश करेगा ताकि ये किसी तरह रास्ते से हट जाए और मेरा तूती बोलता रहे। तो इस तरह की सूरतें हो सकती हैं। तो ये बहुत मजमूम बल्कि बहुत गुनाह का काम है इस तरह कि किसी को मतलब अपनी जाती हसद खुद बहुत बुरी चीज है। हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। तो ये पाया जाता है, मुबल्लिगिन में भी मिलेगा, नात खानों में मिलेगा, कारी साहिबान में मिलेगा, और मैं आगे नहीं बढ़ता, तकरीबन हर तबके में ये पाया जाता है। लेकिन हर फर्द ऐसा नहीं होता, मैं जनरल बात करता हूँ कि ये पाया जाता है। ये मतलब मरज अल्लाह पाक इससे महफूज रखे। ये मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम अता करे और हम सबको इनके सदके इनके कदमों में जन्नत में पहुंचा दे। ये फरमाते हैं कि कम अज कम मुझ में हसद तो है ही नहीं। ये फतह रज़विया में इन्होंने आला हज़रत ने लिखा है, हो सकता है बाज़ों ने पढ़ा होगा,
تو حسد یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس سے بندہ بچ جائے. یہ بچے بھی ایک دوسرے پر خار کھا رہے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ناسمجھ بچے بھی حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ شیطان کا بہت کامیاب وار ہے کہ بندہ سمجھتا ہے میں تو نیکی کرتا ہوں, اور یہ مطلب بیچارہ جو ہے اس طرح حسد میں رہتے ہوئے بہت خراب ہو جاتا ہے. اور نظر جو لگتی ہے نا, حق ہے نظر لگنا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حاسد کی نظر جو ہے نا, حسد کرنے والی کی نظر, یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. کلو ذی نعمت محسود, حدیث پاک ہے کہ ہر نعمت والا, کلو ذی نعمت, ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے, کہ لوگ اس سے حسد کر رہے ہوتے ہیں. جنرل بات ہے کہ مطلب حسد تو ہے. اب اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے کہ کسی کے بارے میں ہمارے ذہن میں اس طرح کی باتیں آئیں کہ یار یہ نعت بہت اچھی پڑھتا ہے, یہ آتا ہے, تو میرے کو کوئی خاص نہیں ڈالتا, یہ نہ اس کا گلا بیٹھ جائے یا اس کی برائی کر دی, یہ نعتیں تو بہت اچھی پڑھتا ہے, فجر میں اٹھتا ہے, اس کو پوچھو. اب مجھے کیا ضرورت ہے یار, یہ فجر میں پڑھتا نہیں پڑھتا یہ دوسروں کو بتانے کی, تاکہ لوگ اس سے بزن ہو اور اس کو نہ سنیں, مجھے سنیں. اگر یہ جذبہ ہے تو کتنا مطلب یہ برا آدمی ہے یہ شخص. اسی طرح آپ اعلیٰ حاضل قیاس جس کو بولتے ہیں, قیاس کر کے ہر فیلڈ میں, دنیاوی فیلڈ میں بھی ہوتا ہے, کاروبار میں, دکانداروں میں ایک دوسرے کی حسد, ایک دوسرے کی مخالفت, اور ایک دوسرے کے مال کو مطلب گھٹیا بتانا, مطلب ہے بہت ہے یہ حسد. اور یہ ایسا مرض ہے جس کی طرف توجہ بھی بہت ساروں کو نہیں ہوتی, پتہ ہی نہیں ہوتا. اللہ پاک حسد سے بچائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد شہرت طلبی سے ہوتا ہے. میں مشہوری جو چاہتا ہے کہ میں مطلب فیمس ہو جاؤں, اور جو حسد شہرت طلبی سے پیدا ہوتا ہے. اور میرے رب کریم کے وجہ کریمہ کے لیے حمد ہے کہ میں نے کبھی اس کے لیے خواہش نہ کی, بلکہ ہمیشہ اس سے نفور اور گوشہ نشینی کا دل دادا رہا. جلسوں انجمنوں کے دوروں سے دور رہنا انہی دو وجہ پر تھا. یا حضرت اپنا وہ بتا رہے ہیں کہ میں مطلب یعنی کہ ایسے اسباب سے بھی بچتا رہا کہ جس سے مجھ میں حسد پیدا ہو جائے. تو جس کو شہرت کی خواہش ہوتی ہے, اب جیسے الیکشن ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی کس طرح مطلب مخالفت کی جاتی ہے, کیونکہ جب تک اس کو یہ گرائے گا نہیں جیتے گا کیسے. لیکن یہ کرسی کیا کام آئے گی یار, کسی کو ڈیگریڈ کرنا تو ہے, مطلب یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے حسد, یہ باطینی مرض ہے. اللہ ہم سب کو شفا عطا فرمائے اس مرض میں جو بھی مبتلا ہیں, اور جو مطلب بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ پاک مزید اس کو ہمت دے اور یہ بچ جائے. اللہ پاک بچانے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.